آج اس اہم خبر کے ساتھ کہ موٹر وے M4 ملتان سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ موٹر وے M4 ملتان سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ احمد رحمان ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے جوائن کر چکے ہیں۔ جی احمد، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کی جو موٹر ویز ہیں اس وقت جو ہے وہ شدید دھند کی لپٹ میں ہے، جس میں جو ہے وہ موٹر وے M4 کو جو ہے وہ خصوصی طور پر شدید دھند کے باعث جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پر جو ہے وہ حد نگاہ صفر ہونے کے باعث جو ہے موٹر وے M4 کو جو ہے تمام طور ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے کو جو ہے وہ شیر شاہ انٹرچینج سے جو ہے وہ پنڈی بھٹیاں تک جو ہے وہ تمام طور ٹریفک کے لیے بند کیا گیا، اور اسی حوالے سے ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دھند کی شدت جو ہے وہ کم ہوگی، حد نگاہ بہتر ہوگی، تو موٹر وے M4 کو تمام طور ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ترجمان موٹر وے کا بھی یہی کہنا ہے کہ فوگ لائٹ کا استعمال جو ہے وہ گاڑیوں پہ ضرور کرے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ہی اگر آپ نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے تو 130 موٹر وے ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کرنے کے بعد موٹر وے پر سفر کریں تاکہ کسی بھی مشکلات کا جو ہے وہ ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے مزید بھی یہی کہا ہے کہ جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو موٹر وے M4 کو تمام طور ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی، تمام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ احمد، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موٹر وے M4 ملتان سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ملتان میں دن بھر گہری دھند اور خطرناک فضائی آلودگی سے نظام زندگی متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M4 N5 بھی کئی گھنٹے بند رہے۔ اندرون شہر آلودگی میں ریکارڈ اضافہ AQI 681 پوائنٹس پہنچ گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ سموک کے باعث ملتان کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب رہا۔ اندرون شہر AQI 681، گھنٹہ گھر پر 662، نواز شریف زرعی یونیورسٹی 647، ایگریکلچر یونیورسٹی روڈ 601، کھاد فیکٹری 515، کینٹ پبلک سکول 515 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر شہر کا AQI 399 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ خطرناک صورتحال کے باعث ملتان آج ملک کا 5واں آلودہ ترین شہر برقرار پایا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M4 شیر شاہ سے گوجرا تک اور M4 شیر شاہ سے ظاہر پیر انٹرچینج تک کئی گھنٹے بند رہی۔ حد نگاہ 50 سے 100 میٹر تک رہی، جبکہ دن بھر دھند چھائی رہی۔ شہر میں دھوپ نہ نکلنے اور سموک کے باعث سردی میں اضافہ ہوا۔ فضائی آلودگی میں خطرناک اضافے پر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اور ساتھی رپورٹر احمد خان، سہیرا طارق کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ سردیاں شروع ہوتے ہی ترنڈا محمد پناہ میں سوئی گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے سے شہری دوہری پریشانی کا شکار۔ بروقت ناشتہ اور کھانا تیار نہ ہونے سے کم سن بچے اور شہری بھوکے رہنے پر مجبور۔ شہری سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر سراپا احتجاج، حکام بالا سے صورتحال پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات دیکھیے غلام علی کی رپورٹ میں۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی ترنڈا محمد پناہ کے مختلف علاقوں میں گیس کا بحران شدید ہو گیا۔ غریب کالونی، مدینہ کالونی، محلہ عثمان غنی سمیت متعدد علاقوں میں گیس کی مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ شہری سوئی گیس ڈپارٹمنٹ کے عملہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا، سردیاں شروع ہوتے ہی گیس بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتہ کے دوران اور شام کو کھانا پکانے کے وقت گیس نہیں ہوتی۔ بچے بھوکے رہتے ہیں، انہیں بھی خالی پیٹ کام کاج پر جانا پڑتا ہے۔ بازار میں خشک لکڑی اور LPG گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ غریب لوگ ہیں، کہاں جائیں؟ گیس اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ سارے بچے جرنا سکول خالی پیٹ چلے ویندن تے لہذا ساکو حکومت ہوئے اپیل ہے کہ دی لوڈ شیڈنگ ختم کی ونجے۔ گیس ہوندی کیا نہیں سی سویرے اسائی بھوکے بے تے آخر کام تے چلے ونو غریب آدمی اسی ولا گھر باہر ونو شہر ونو تا چولے والے لٹی کھڑے نہ ساکو او بھیجو 10 روپے دے خود ملتے نہیں 20 روپے دے نہیں ملتے آدھے 100 دے 50 دے گنو۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے فوری نوٹس لے کر گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त का अमल जारी। ताखीर से काश्त करने वाले काश्तकारों को पैदावार पर मनफी असर पड़ता है। ज़राई माहिरीन कहते हैं 15 दिसंबर के बाद गंदम की काश्त से 1 मन फी एकड़ तक पैदावार में कमी का खदशा होता है। तफसीलात जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की बर वक्त काश्त न होने से फी एकड़ पैदावार पर मनफी असर पड़ने का खदशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की बर वक्त काश्त न होने की सूरत में फी एकड़ पैदावार मुतासिर होती है। 15 दिसंबर के बाद काश्त की गई गंदम में 1 मन फी एकड़ तक पैदावार कम हो सकती है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकार सर्द मौसम में गंदम को कम पानी दें और गैर जरूरी आबपाशी से गुरेज करें ताकि फसल महफूज रह सके। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों से मौसमी सूरत हाल के मुताबिक गंदम की बर वक्त काश्त और ज़राई हदायत पर अमल करने की अपील की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर जिला लोधरा की तमाम फ्लोर मिल्स बंद हो गई। आटे की शदीद किल्लत, कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। जिला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कारी खिजर अब्बास कहते हैं गंदम का सरकारी कोटा मुकम्मल तौर पर बंद है। फ्लोर मिल कैसे चलाएं? केहरोड पक्का से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। सरकारी कोटा न मिलने के बायस जिला लोधरा की तमाम फ्लोर मिल्स बंद। आटे की शदीद किल्लत, कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इस हवाले से जिला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कारी खिजर अब्बास का कहना था कि हुकूमत ने गंदम का सरकारी कोटा बंद कर रखा है। मिल्स मालकान ओपन मार्केट से 4000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्ख के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए मुकर्रर है। इस लागत पर आटे की फरोख्त मुमकिन नहीं। जिला लोधरा में तमाम फ्लोर मिल्स और बाकी अजला में भी किसी को नहीं कोटा दिया जा रहा, जनूबी पंजाब खास तौर पर। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कोटा दिया जाए तो हम जो है ना आवाम को सस्ता आटा देंगे। हमारे पास इस टाइम ना गंदम बाहर से लेते तो वो तकरीबन 4000 से नजदीक है। शहरियों का कहना है कि फ्लोर मिल्स बंद होने के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। बाजारों में आटे की किल्लत के बायस शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हुकूमत अवाम को सस्ता आटा देने के दावे तो करती है लेकिन अमली तौर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। इंतजामिया ने फौरी इकदाम ना किए तो अवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम तनवीर बशीर के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, किरोड़ पक्का। शहर ओलिया में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम। सब्जी मंडी और मार्केट में सरकारी निर्खनामा मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। शहरी खुद साख्ता महंगाई के बोझ तले पिसने लगे। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। तफसीला सलमान जमीर की इस रिपोर्ट। मुल्तान में मनमानी कीमत पर सब्जियों और फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। सरकारी निर्खों में मटर 140, मंडी में 150 से 155 रुपए फरोख्त। पालक, फूल गोभी, साग, शलजम 40 से 50 रुपए में फरोख्त। शिमला मिर्च के सरकारी नर्ख 150 जबकि मंडी में 160 रुपए में दस्तयाब। सरकारी निर्खों में टमाटर 42 रुपए, मार्केट में 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खों में प्याज 78 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो दस्तयाब है। सरकारी निर्खों में आलू 22, हरी मिर्च 74 रुपए किलो जबकि मार्केट में आलू और मिर्च 70 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 290 जबकि मंडी में 310 रुपए फरोख्त हो रही है। मार्केट में बंद गोभी 160, गाजर 90, पालक 70 और चुकंदर 120 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। मार्केट में सुहाजना 290, लहसुन 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। फल भी आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो गए। सरकारी निर्खों में अंगूर 750, सेब 300 और कंधारी अनार 500 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 900, अनार 650 और सेब 350 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 342, गंडेरी 70, अमरूद लाड़काना 192 और मौसमी 60 रुपए किलो मुकर्रर। शकरकंदी 150, जापानी फल 350 रुपए किलो जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। आवामी हलकों का मुतालबा है कि इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें ताकि शहरी सस्ती और मयारी सब्जियां फल खरीद सकें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। राबी क्लॉथ मार्केट मुल्तान का चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के साथ इल्हाक का ऐलान। सदर हाफिज इमरान सजाद और उनका पूरा पैनल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में शामिल। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना था कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ही हकीकी ताजरों की जमात है। मजीद बात करते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान राबी क्लॉथ मार्केट के नौ मुंतखब ओहदेदारान ने जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ इल्हाक का ऐलान किया है। बात करते चलें तो राबी क्लॉथ मार्केट के सदर हाफिज सज्जाद और उनका पूरा पैनल जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में शामिल हो चुका है। इस वक्त बात करते चलें तो इस एजाज में आज तकरीब भी मुनक्किद की गई है जिसमें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत किया। बात करते चलें तो ख्वाजा मोहम्मद शफीक हमारे हमरा मौजूद हैं। तमाम मार्केट ने मिलकर ये फैसला किया,
मेरी इज्जत अफजाई फरमाई। आज सच्ची बात है, मैं फूलों नहीं समा रहा। इस कावश में मलिक ताहिर अमजद साहब हमेशा की तरह से सबकत ले गए, मलिक ताहिर डोगर साहब हमेशा की तरह सबकत ले गए। ये इनकी एक मेहनत शाखा है जिसकी वजह से एक बड़ी मार्केट का आज मुझसे इल्हाक हुआ है। मैं मसरत व इम्बसात के इन लम्हात में अपने जज्बात का इजहार करने से कासर हूँ। इन सब लोगों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें ताजरों की वेलफेयर के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त बात करते चलें तो राबी कलात मार्केट के सदर हाफिज इमरान सज्जाद वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान बात यह है, तमाम दोस्त जो है ना जी, हमारे दोस्त हैं, हम तो दोस्तों के साथ हैं, ठीक है ना जी। इधर मलिक ताहिर डोगर साहब हैं, इनसे अपना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यार है और ताजिरों की खिदमत करते हैं। और मैंने एक वादा किया इंशाल्लाह जब तक जिंदा है मलिक ताहिर डोगर साहब के साथ हम इंशाल्लाह शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं। जिधर मलिक ताहिर डोगर साहब हैं उधर हम हैं, ख्वाजा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इंशाल्लाह हमारी जो भी खिदमात इनको चाहिए होंगी इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। मैं नहीं समझता कि मेरा कोई किरदार है। हाफिज साहब एक समझदार आदमी हैं, वो काफ़ी अरसे से तंजीम ताजरान के साथ चल रहे थे, उन्हें भी पता था उनके मामलात का। जब उन्होंने अच्छी तरीके से उनको देख लिया तो हक और सच का साथ देने के लिए अपना ख्वाजा साहब के साथ, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ अपना इल्हाक का ऐलान कर दिया। ये हक और सच के साथ हैं और हम इनके साथ हैं। हक और सच का साथ देने के लिए और ताजरों की हकीकी जमात में जो है वो शामिल होने के लिए आज जो है वो राबी कलात मार्केट के नौ मुंतखब दौरान जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ जो है वो उन्होंने इलाक किया और उनमें जो है वो शामिल हो चुके हैं। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफी का कहना है कि राबी कलात मार्केट के जो ताजरान हैं उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर एतमाद किया। अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान में पहली किसान डेयरी केटल फार्म एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान डेयरी एंड केटल फार्म से इल्हाक। डेयरी और केटल फार्म्स का आला नस्ल की गाय और भैंसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म कायम। वसीम शहजाद इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो पहली किसान डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन जो है वो आल पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने जा रही है। आल पाकिस्तान के बात करते चलें तो रहनुमा मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। असर, इस वक्त आप मुल्तान पहुंचे हैं, क्या सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं, डेयरी के मसाइल क्या हैं और ये पहली एसोसिएशन जो है वो आज मुल्तान लेवल पर जाकर आपके साथ इल्हाक हुई है, क्या इनको उम्मीदें जो है वो अपने दी हैं और क्या कहेंगे सब? असल में जी सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसान का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है और यकीनन DCFA पाकिस्तान एक मुल्की सतह की एसोसिएशन है। साउथ पंजाब में यहाँ सेटअप अनाउंस करने के अगराज व मकासद जो हैं वो यकीनन किसान की खुशहाली है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। आप सब जानते हैं कि ये वो बेल्ट है जो लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है और किसान का होने वाला मुसलसल इस्तेहसाल इस सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है और किसान के हुकूक की जद्दोजहद हम पिछले कोई 20 सालों से करते आ रहे हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्की सतह की एक ऑर्गेनाइजेशन का जब सेटअप यहाँ अनाउंस होगा तो यहाँ काम शुरू होगा, यहाँ महकमा लाइव स्टॉक भी एक्टिव होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज महकमा लाइव स्टॉक साउथ पंजाब के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक माशी ताकत बन के उभरे और लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की से ही वो मुमकिन होगा। और हम ये चाहेंगे कि जी पाकिस्तान फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर हो और किसान की खुशहाली के साथ पाकिस्तान दुनिया की मार्केट में एक माशी ताकत बन के उभरे। डेयरी से मुंसलिक लोगों के अगर मसाइल की बात करते चलें तो वो मसाइल हैं क्या, क्या कहना चाहेंगे जिसमें आप समझते हैं कि साउथ पंजाब में इनकी कमी थी जिसको फुलफिल किया जा सकता है? देखिए जी, साउथ पंजाब समेत पूरे मुल्क में जो सबसे अहम इशू है वो दूध की कीमतों का इशू है। इनपुट आजाद है, आउटपुट कंट्रोल है, डीसीज उसे कंट्रोल करते हैं और यकीनी तौर पे जब अजनास 76 बेमुहार की तरह बढ़ता जाएगा, अजनास की कीमतें, फीड की कीमतें बढ़ेंगी और दूध की कीमतें वही इन्हें 150 रुपए लीटर मिलेंगी तो वो कहां से सर्वाइवल करेगा। तो सबसे अहम बात यह है किसानों को अवेयर करना, उसकी ब्रीड को बेहतर करना। और मैं आपको बता दूं, खुशकिस्मती से शौकत डोगर साहब हमारी इसके सरपरस्त हैं, DCFA पाकिस्तान के, साउथ पंजाब के। इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, ये एसेट है हमारे मुल्क का। इन्होंने जो भैंस हमारे यहाँ पूरे मुल्क में जो भैंस एवरेज प्रोडक्शन दे रही है वो 6 लीटर दे रही है, इनकी भैंस 30 लीटर दे रही है। आखिर क्यों?
ये काम इदारों का था जो हमने ना किया, जो शौकत डोगर ने किया। तो जरूरी है कि हम ऐसे फार्मर्स को अपने सर आंखों पे बिठाएं, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके लिए दूध मेले का बार बार इनकाद करें ताकि फार्मर की हौसला अफजाई हो। और डीसीएफए पाकिस्तान कई दूध मेले के मुकाबले करा चुकी है और इंशाअल्लाह ताला शौकत डोगर जैसे और हजारों फार्मर्स हमारे सामने हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी का इदारा GCLI मैदान में आ गया ब्रीड को बेहतर करने के लिए, RVNDFC, फार्म ग्रो, डेजी फार्म, तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने किसान को अवेयर करें, उन्हें महकमा लाइव स्टॉक सिंध से मुफ्त अद्वियात दिलाएं और इंशाअल्लाह ताला उनकी ब्रीड को बेहतर करने के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए हम इनके साथ शाना बशाना चलें। डॉक्टर साहब, आपने अपने तय ये किरदार तो अदा कर लिया 30 लीटर दूध का, बाकी जो फार्मर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको अपनी जानिब से क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे? कम वसाइल के साथ ज्यादा पैदावार कैसे मुमकिन हो सकती है? एक तो शाकर उमर गुज्जर साहब आए हैं, इनका शुक्रिया, हमारे मुल्तान आए हैं। ये जो DCFA बनी है ना, इसका बहुत बड़ा, जब यूनियन बनेगी ना उस टाइम एक किसान को पता चलेगा भी इस DCFA का कितना बड़ा फायदा है। देखें ना, किसान को सबसे बड़ी बात है दूध की, जब रेट नहीं मिलेगा किसान उस टाइम कभी ऊपर नहीं आ सकता। आज एक जानवर को तैयार करने के लिए 3 साल लगते हैं, उसका खर्चा बहुत है। जब दूध का रेट नहीं होगा किसान उस तरफ कभी भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जब दूध का रेट होगा किसान को, जब बचेगी कोई ना, जब कुछ ना कुछ चीज बचे ना, फिर ही आदमी उस चीज की तरफ जाता है। बहरहाल ये यूनियन बनी है, इसका बहुत बड़ा हमारे जिले मुल्तान को फायदा पहुंचेगा। जैसे शाकर उमर गुज्जर साहब ने एक बात किया ब्रीड के ऊपर, एक ज़हन में रखें, हम किसान है ना, 5 लीटर वाली भी भैंस रखनी है, 20 लीटर वाली भी रखनी है। आज जब तक ये यूनियन नहीं बनेगी उस टाइम तक कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ये DCFA बनी थी 2022 में, जो शाकर उमर साहब ने ये जो अनाउंस किया था ना मुल्तान का, मुझे याद आ रहा था आपको देख के, मेरी भैंस ने जो 10 भैंसें इनको चुवाई कराई, जो भैंस ने ज्यादा दूध किया था 30 किलो 150 ग्राम। अगर मेरी एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अवार्ड हैं। 2006 में 30.5 लीटर, इधर जो सरकारी मुकाबला कमिश्नर DCO साहब करवाते रहे ना, 30 किलो 30.5 लीटर दूध किया। 2007 में तीनों पोजीशन, तीनों भैंसों ने 30-30 लीटर दूध किया। 2009 में भी इधर फर्स्ट आया हूं। 2009 में शहबाज शरीफ साहब ने जब मुकाबला कराया ना, उधर भी भैंस ने 30 लीटर दूध, 30 लीटर से ऊपर किया, इधर भी। ये देखे ना, मैं भी तो किसान हूं, जैसे ये हैं वैसे ही मैं हूं। अगर मैं ब्रीड को ऊपर ले जा सकता हूं, आज जो एक DCFA ने, जब इनने DCFA बनी है ना, इसके बाद एक PDFA बनी, उसमें एक भैंस की चुवाई कराई है हमारी, जैसे गोरा करता है। गोरे ने कहा जी हमें एक दिन की चुवाई को नहीं मानता, जो पर डे का दूध दिखाते हैं ना भाई वो कितना होगा। उसमें अपना आरफ साई साहब सदर बने, जनरल सेक्रेटरी तारक सुल्तान साहब थे, उन्होंने चुवाई कराई 7 माह की, 1 माह की नहीं 7 माह की, 5635 लीटर दूध किया, 27 लीटर की एवरेज आई है। अगर वो भैंस इतनी कर सकती है, हमारी कौम जब इस पे काम करेगी ब्रीड के ऊपर, उसी टाइम किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसान को उसी टाइम ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा जब इसके ऊपर काम होगा। और इसकी पर्सनल जो एग्जांपल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। फार्मर्स, कोशिश यही की जा रही है कि इनको बेहतर बनाने के हवाले से जो फार्मर्स हैं अपना किरदार अदा करें। आज इसी सिलसिले में आल पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन के साथ मुल्तान की जनूबी पंजाब की बॉडी इल्हाक कर रही है। जी।